Hello students, welcome back to my channel. In support of our PM request, we all are at home and we are fighting with COVID-19 or novel coronavirus pandemic. So, in support of this, I support work from home and I request the same to all of you to be get united by staying at home because it is necessary for a decisive battle against the COVID-19 outbreak. So I request you all to stay at home, and in this session we will learn about operations on NumPy. So in the previous video we have seen the different types of function which we can use with arrays, and in this particular video we will learn some operation which we can perform on NumPy array. So let's start the session. So the first slide or first thing which we are going to see in this particular session is array slicing. So all of us have read out this particular topic in class 11th also, and from this you know how to do array slicing in the list, because list you have read in your class 11th, in which you have done the slicing operation. So in the arrays, how we are going to perform the slicing operation, this we will see in this particular topic right now. So slicing in NumPy array means taking elements from one given index to another given index. That means we are going to give the indexes, and on based of those indexes we are going to get some elements. Fine, that means from a particular array we are going to get some elements on the on which are based on the indexes. Fine. So as I have already told you, it is similar to the slicing of a list elements. This simply means that a subsequence of the structure can be indexed and retrieved. That means from a big sequence we are going to retrieve the subsequence. एक बड़ा पार्ट है, उसमें से हमें क्या करना है, छोटे से पार्ट को इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेच करना है, वैल्यूज को रिट्राइव करना मतलब फेच करना है. फाइन. सो स्लाइसिंग इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द colon operator. We have to use the colon operator if we want to perform the slicing, with a from and to index before and after the column respectively. That means before and after that particular column we have to give the from and to. So here is the syntax. That means before and after that particular columns we have to give that from and to operator. Fine students. Next, move to the next slide. So before moving to the next slide, we have to see that example of this particular array slicing, and for making it more clear to you, I would like to show the practical implementation on array slicing. First we will see the practical implementation on 1D array, then we will switch to 2D arrays. Fine students. So right now we will see the practical implementation on 1D array. For that I am just creating a new file. You can also use the shortcut control N for creating the new file, and in that particular thing, as you know, first we have to write the import statement for importing the NumPy. So I am writing the first thing which we are going to do in the comment. I am writing the purpose for creating this particular program. So I am creating this particular program for demonstrating the slicing in 1D array. So I have written in comment. I guess all of you know that we are writing the comment using the hash, and then after I have to write the import statement. Then I am writing import
numpy as np, same steps. And then now I am going to create one variable, or I am going to create a variable of array type. Clear? So basically I have created this variable data that is of array type, and here I am just creating array on the object of np, that is numpy. So basically what we are going to write in it, I am going to specify the range of the array's element, so I can specify whatever I want to give, like 4, 6, 9, 10. So these 4 elements I have given over there. And now I am going to write the print command to show you the result. So I want to print, what I want to print, I want to print the value of data. And as I told you, we will use the square brackets, and within the square brackets you have to apply the slicing, and for apply the slicing you have to use the colon. Okay students, so use that colon, so it will extract the slice from start to end. If we are not going to mention any value before and after this colon, before and after this colon, then it will give you the whole string. Fine, so I am just saving this particular file with the name test.py, and I am just saving it. And to run this particular file, just click here run and run module. You can also press F5. I am just going to show you the things, that's why I have showed you how to run from that menu. Next time I will just press the F5. So see students, it has printed the array slicing from start to end, because what we have used over there, we have used colon, but we haven't mentioned the starting and ending index. But now what I am going to do, I just want to start from 1 and I want to go till 3. If you are going to remember the things which you have done in the list, आपने जो लिस्ट में करा था, अगर आपको वो याद हो तो जो भी हम इंडेक्स देते थे उसमें से -1 तक लेता था वो. फाइन. सो how it will work, this one means your first index, that is simply depict your things will start from the 0 index, that means this 4 is on 0 index and this 6 is on 1 index. So I have specified the 1, so it will take up the 6, and this is your second index, 9 is on your second index and 10 is your on third index. So basically how it will read, this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3. So 1 means it will take 6 and 2 also it will include, so it will include 9 also, but 3 it will not take, because सिंपली हम करते क्या थे इसमें, फर्स्ट इंडेक्स जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट होंगे आपके 0 इंडेक्स से. फाइन स्टूडेंट्स, और जो भी आपने इंडेक्स दिया है 3, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स तक ही जाएगा. सेकेंड इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है 9, तो आपको क्या आउटपुट आना चाहिए इसका 6 and 9. So I am just going to show you the output. So you want to save this file, okay, and see the output now, it is showing you 6 and 9. Fine. So here I have mentioned the starting index and here I have mentioned the end index. What is the important thing you have to remember, that your things or indexes starts from 0 and in your end index you have to subtract the value by 1. Fine. So whatever the value is written over here, you have to do till -1 index. So let's see one more example in which I am not going to give the starting value and I am just writing the ending value as 3. So 3 means 3 minus 1, it will go up to second index. So it will extract slice from start to third index value. Fine. So third index value, what I am having, the third index value 0, 1, 2. This is my third index value. Fine. In index it is the third value.
फाइन. सो व्हाट इट विल डिस्प्ले 4, 6 एंड 9. वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग नहीं दी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली ये 0 से स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या है मेरा? 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो 3 इंडेक्स दे रखा है तो -1 लेगा. दैट मीन्स यहाँ तक लेगा, 2 तक ही लेगा. तो कहाँ तक प्रिंट कर देगा? 4, 6 एंड 9 प्रिंट कर देगा. क्लियर स्टूडेंट्स? So I am just going to run this program, and according to that particular thing, see, it is giving me 4, 6 and 9. Fine. I hope this thing is clear to all how it's going to give this particular output. Let's see one more thing. अब हमें करना क्या है? अब हमने सेम थिंग क्या करी, स्टार्टिंग की चीज़ मेंशन कर दी कि आप सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, बट एंडिंग मेंशन नहीं करी. तो सेकेंड इंडेक्स क्या हुआ मेरा भाई? 0, 1, 2. दिस इज माई सेकेंड इंडेक्स, सो इट विल प्रिंट 9 and 10 इन दिस केस. क्यों? क्योंकि मैंने एंड इंडेक्स तो स्पेसिफाई करा ही नहीं है. सो मैंने इंडेक्स जब स्पेसिफाई नहीं करा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? मैंने बोला था यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करो, मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो. तो 0, 1, 2. तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 9 से स्टार्ट करेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9 एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू टिल एंड इंडेक्स. तो लास्ट इंडेक्स सिर्फ 10 ही था, तो इसने यहाँ पे 10 दे दिया. अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा होता, दैट मीन्स 0, 1. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज. दैट मीन्स इन दिस केस ये मुझे क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? 6, 9 एंड 10. फाइन. जस्ट सी द आउटपुट. इट विल गिव यू 6, 9 एंड 10. इट्स क्लियर टू ऑल? सो नाउ स्टूडेंट्स जस्ट सी द नेक्स्ट थिंग. ये तो था जब हम पॉजिटिव वैल्यूज पास कर रहे हैं. फाइन. हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव इंडेक्स पास कर रहे हैं. तो पॉजिटिव इंडेक्स जब भी हम पास करते हैं तो जो फर्स्ट इंडेक्स होता है इट विल काउंट एज 0. फाइन. नेक्स्ट इंडेक्स 1, 2, 3. बट इफ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव इंडेक्सेस, अगर मैं वैल्यू क्या दे दूं? -1 दे दूं. मैंने कहा यहाँ पे स्टार्ट करो आप -1 से. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करो? -1 से. तो -1 इंडेक्स ये होगा. कौन सा होगा? ये 10 होगा. फाइन. तो इस केस में आपको क्या आउटपुट देगा वो? जस्ट देखो 10 दिया. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था -1 से स्टार्ट करो. तो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कराया, उसके बाद कोई एलिमेंट्स ही नहीं थे लिस्ट में, तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न कर दिया? 10 रिटर्न कर दिया. क्लियर? तो याद रखना, क्या इस टाइम नोट करने वाली बात है, वेन एवर वी आर गोइंग टू गिव द वैल्यूज इन माइनस, जब भी हम माइनस में इंडेक्स पास करते हैं तो माइनस में हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता. क्लियर? बिकॉज 0 हमेशा हम यहाँ पे पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब हम राइट टू लेफ्ट एलिमेंट लेंगे, दैट मीन्स जब हम माइनस यूज करेंगे उस टाइम पे हम क्या देखेंगे? इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 से. Clear students? I hope this particular point is clear, and whatever the points I have told you, these points are very very important. अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. आपको एक पर्टिकुलर ऐसे ही कोई प्रोग्राम दे दिया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा राइट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. फाइन. या आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे. कोड लिख दिया, वहाँ पे कह दिया कि आप एरर बताओ, या इस पर्टिकुलर लाइन के लिए यहाँ पर आपको इतना स्लाइसिंग करनी है, उसके लिए आप एक लाइन लिख दो कि आपको ये पर्टिकुलर वर्ड्स कैसे फेच करोगे. जैसे मैंने कह दिया मेरे को 6, 9 और 10 प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप कोड लिखो. तो 6, 9 और 10 प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप एंड वाला इंडेक्स खाली छोड़ सकते हो. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 1:3 लिखोगे उस केस में. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. जो भी अब आज हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, उनसे आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे. तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सारे इस सेशन के हर एक टॉपिक को, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखना, नोट डाउन करना और प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखना. फाइन स्टूडेंट्स. नाउ अब हमने क्या करा, अब हम नेगेटिव इंडेक्सेस की बात कर रहे थे. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? -3 लिखा. मैंने क्या कहा? कहाँ तक जाए? -1 तक जाए. तो -3 क्या होगा? 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा? -1 तक जाएगा. तो -1 में भी हमें एक वैल्यू और कम करनी पड़ेगी. फाइन. सो ये रिजल्ट क्या देगा हमें? 6 और 9 दिया. क्यों दिया 6 और 9? स्टूडेंट्स हमने देखो क्या बोला
-3 से स्टार्ट करें तो -3 क्या हुआ, -1 -2 -3, दैट मीन्स 6 वैल्यू प्रिंट कराएगा, -2 भी प्रिंट कराएगा, बट -1 तो एक्सक्लूडेड होगा ना, लास्ट इंडेक्स तो हम काउंट करते ही नहीं, तो जब -1 एक्सक्लूडेड होगा दैट मीन्स वो इस 10 को तो प्रिंट कराएगा ही नहीं। वाई? बिकॉज हम यहाँ पर क्या करते हैं, -1 करते हैं। जब -1 के अंदर आप -1 करोगे तो ये -2 तक ही तो लेगा, है ना। तो इस केस में इसने क्या करा, -3 यानी कि 6 से स्टार्ट करा, -2 की वैल्यू प्रिंट कराई और इस -1 की वैल्यू को छोड़ दिया, दैट मीन्स इस 10 को इसने छोड़ दिया। क्लियर? सो समझ में आया ये नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ कैसे वर्क करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस केस में क्या वैल्यू देगा आपको, 4 6 एंड 9। वाई? बिकॉज आपने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करा और आपने -1 दिया है, -1 इग्नोर करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 4 6 एंड 9। क्लियर? सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू you all. So this is all about the practical implementation of your array slicing with 1D array. Now we are going to do the slicing with 2D arrays. So within the same program I am just going to do some changes. So just see over here what I have done. I have written the same statement in the data, just I am going to take some different arrays. So here I am writing, यहीं पे ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4, फाइन, simple value. And when we are going to give the multiple arrays, in this case we have to separate it by comma, और हमें different parentheses भी यूज़ करने होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिकली ये आपके पैरेंथेसिस होते हैं और ये जो अंदर है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। जिसको नहीं पता हो ये टर्म क्लियर कर लेना, कई बार बोला जाता है पैरेंथेसिस ही बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, फाइन, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ही बोलते हैं। तो मैंने ये क्या करा, एक एरे ले लिया। कितने बाई कितने का एरे है स्टूडेंट्स ये, हम देखें तो कितनी रोज़ हैं यहाँ पे, 3 रोज़ हैं, एंड इन 1 2 3, तो ये 3 क्या हो गई, रोज़ हो गई, एंड 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए। सो 3 by 4, दैट मीन्स टोटल 12 एलिमेंट शुड बी देयर इन दिस पर्टिकुलर एरे, फाइन। तो अगर मैं इसको सिंपल इस एरे को प्रिंट कराऊँ, डेटा को प्रिंट कराऊँ, तो मुझे क्या रिजल्ट देगा, नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट accepted. What I have done over there, just see, just one bracket error was there, just put this particular square brackets. Now this program is fine. So see, as I told you, there are 3 rows and 4 columns. Clear? So this is your 3 by 4 array. 3 by 4, that means total 12 elements should be there in this particular array. So now we are going to perform the slicing operations. So how we are going to perform it, just I am taking the thing, I am taking one more variable which name I am going to write as b, and in b what I am doing, this particular data क्या है मेरा, एरे टाइप का वेरिएबल है। तो हमें करना क्या है, इस डेटा के अंदर से कौन सी चीज़ें फैच करनी है। इस डेटा के अंदर मैंने सिंपल लिखा 1 colon 2, fine, then I have separated it with using the comma, and then 0 colon 4, fine. What I have written, 1 colon 2 and then 0 colon 4. So I am going to print the value of b. So I am writing वैल्यूज़ ऑफ b। तो v वेरिएबल में क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी वो हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए जो भी आपको मैसेज देना होता है वो आप सिंगल कोट्स में देते हो और आप इस तरीके से लिख देते हो। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये काम कैसे करेगा, क्या आउटपुट देगा, देख लेते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द आउटपुट लाइक 5 6 7 8। अब इसने 5 6 7 8 कैसे रिटर्न कर रहा है, देखो आपने क्या बोला, 1:2। सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ समझने वाली बात जो है वो अच्छे से समझना।
यहाँ पे हमने देखो दो चीज़ें पास करी हैं। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी अब ये दो चीज़ें पास क्यों हो रही हैं, बिकॉज ये आपका क्या है, आपका 2 डायमेंशनल एरे है ना, 2D एरे है। 2D एरे किस में काम करता है, रोज एंड कॉलम्स में काम करता है, ठीक है। जैसे अब ये मैंने आपको ये बताया था, ये दिखाया था ना हमने, ये क्या थे, यहाँ पे ये रोज थे, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 3 रोज है और आपके 4 कॉलम्स हैं, क्लियर। तो दैट मीन्स 2D एरे किस में वर्क करता है, रोज एंड कॉलम में वर्क करता है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लिए पास हुए हैं। आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है ये है आपका रोज के लिए, और जो सेकंड है ये आपका किसके लिए है, कॉलम के लिए है, फाइन। तो ये किसके लिए है, रोज के लिए, और ये किसके लिए, कॉलम के लिए। तो रोज की बात करें तो हमारी ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 0 हुई, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है। तो ये 0 हुई और ये 1 हुआ। हमने क्या लिखा है, फर्स्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 1 से स्टार्ट करो, 0 1, दैट मीन्स इससे स्टार्ट करेगा। एंड किस रो पे कर दे, 2 पे, तो 2 मतलब एक बैक जाएगा, 2 - 1 क्या होता है, 1, तो 1 of 1, दैट मीन्स फर्स्ट रो के बारे में बात हो रही है। अगर हम लिखते हैं 1:2, किसके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट रो के बारे में। वाई, 1 से स्टार्ट करो, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, तो दैट मीन्स ये रो एंड इंडेक्स क्या दे दिया आपने, 2 दे दिया। 2 मतलब 2 - 1 क्या होगा, 1, तो दैट मीन्स यही रो रिटर्न होके आएंगी। अब ये होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स 0 से स्टार्ट करो, तो सेकंड इस वाले रो की बात हो रही है ना, 0 मतलब ये एलिमेंट होगा, 1 ये एलिमेंट होगा, 2 ये एलिमेंट होगा, 3 ये एलिमेंट होगा, 4 एंड होगा, दैट मीन्स 4 पे एंड होने का मतलब क्या है, 4 - 1 किस पे एंड हो जाएगा, 3 पे एंड हो जाएगा, दैट मीन्स 0 1 2 3। इस वजह से इसने क्या रिटर्न करा है, 5 6 7 एंड 8 रिटर्न करा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपका जो आउटपुट आएगा इसका क्या आएगा, 5 6 7 एंड 8। देखो सेम एग्जाम्पल में अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। मैंने अभी रो सेम रखी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कैसे वर्क करेगा। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो अभी क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2। तो अब क्या रिटर्न करेगा, 5 6 एंड 7। तो उसको रन कर लेते हैं F5 से। ओके, so students just see the value over here, it is going to give you the 5 6 and 7 in this case। क्यों 5 6 and 7 क्यों दे रहा है, बिकॉज हमने स्टार्ट करा फर्स्ट रो रिटर्न करेगा 1:2, 0,3, 0,3 मीन्स 0 1 2 एंड 3 ये कॉलम है लेकिन -1 तक लेगा, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 7 तक वैल्यू लेगा, तो 0 1 एंड 2 रिटर्न करेगा। क्लियर, तो एक बार स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं। मैं आपको एक बार नोटबुक पे एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज माइट भी सम स्टूडेंट्स आर देयर जिनको ये 0 1 2 मैम क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो अभी 0 से 4 पे ही लेते हैं और उसको समझते हैं ऑन नोटबुक। फाइन, तो सिंपल देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेरे आउटपुट आ रहा था ना, तो मैंने इसको क्या करा, नोटबुक पे सिंपल एक टेबल ड्रॉ कर ली। टेबुलर फॉर्मेट में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। आप अगर देखो तो एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 4 ये फर्स्ट रो में थे, 5 6 7 8 ये सेकेंड रो में थे, 9 10 11 12 ये थर्ड रो में थे। फाइन, तो जैसे मैंने आपको कहा ये मेरा क्या होता है, 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है और ये मेरा 2 इंडेक्स है। सिमिलरली कॉलम के लिए भी इंडेक्सेस लिखेंगे हम, 0 1 2 एंड 3। क्लियर है सबको। तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा था b equals to data and in this data I have mentioned 1:2 and 0:4। मैंने आपको क्या बोला, ये जो चीज़ है ये आपकी डिपिक्ट करती है रो और ये आपकी डिपिक्ट करती है कॉलम। फाइन, तो इसके में हम रो के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हम कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रो में क्या बोला, 1:2। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1:2 मतलब ये जो होता है आपका n इंडेक्स, ये क्या करता है, -1 करता है, तो 2 - 1 क्या होगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 1:1, तो 1 के 1 पे, तो 1 रो कौन सी है, यही है। 1 का 1 कौन सा होगा, यही होगा ना, 1 का 1। ठीक है, तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। कौन सी रो देखनी है अभी हमें यहाँ पे, हमें देखनी है सिर्फ और सिर्फ ये रो, फर्स्ट रो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे देखो 0 लिखा होता तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों रो देखते।
ठीक है। बट मैंने अभी यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है 1। तो हम किस रो के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या लिखा देखो 0:4। तो अगर आप देखोगे 0:4, तो इस 4 में तो हमें क्या करना है -1। 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। तो 0 से कहाँ तक वैल्यू देखनी है, हमें 3 तक देखनी है। तो कॉलम के अंदर 0 से 3 तक वैल्यू देख लो, रो सिर्फ ये वाली देखो और 0 से 3 तक की वैल्यू देख लो, क्या आएगा 5, 6, 7, 8। समझ में आया? क्योंकि हमने ये वाली रो नहीं देखनी, ये वाली रो नहीं देखनी। अभी क्यों नहीं देखनी, क्योंकि हमने लिखा है 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्स क्या रिटर्न होकर आया, रिजल्ट 5, 6, 7, 8। तो इसका रिजल्ट क्या आया मेरे पास 5, 6, 7 एंड 8। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देन वापस समझ नहीं आएगा तो मैं इस पे ही अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको नोटबुक। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। अब जैसे मैंने बोला, अब हमें क्या करना है, स्लाइस कंसिस्ट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। फाइन, सेकेंड रो हो और सेकेंड कॉलम देखें हम इसमें। तो हमने क्या करा है यहाँ पे 1:2। ठीक है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, अगर आपको टेबल ध्यान हो तो यहाँ पे तो अभी सेकेंड रो की बात चल रही है, 1:2 लिखा है, दैट मीन्स यही है। कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाए, 2 तक जाए। तो 1 क्या होगा हमारा 0, 1। फाइन, तो यहाँ पर हमें क्या एलिमेंट रिटर्न करके देगा, ये हमें यहाँ पे रिटर्न करके देगा ओनली एंड ओनली 6। क्यों रिटर्न करके देगा 6, बिकॉज हमने क्या बोला 1:2, दैट मीन्स अब हमें कॉलम देखने हैं। तो 1 कॉलम क्या होगा 0 और 1, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा। 2 में आप -1 करोगे तो क्या आएगा, ये इंडेक्स तो रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 6 वैल्यू मिलेगी। क्लियर? अब ये तो हुई सिंगल रो की बात, हमने सिंगल रो पे वर्क करा। अब हम करते हैं स्लाइस कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स ऑल्सो। क्लियर? तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर दे दिया 0:2। क्लियर? एंड हेयर आई एम गोइंग टू गिव ऑल्सो 0:2। तो होगा क्या, 0:2 का मतलब क्या हुआ 0, 1, बिकॉज 2 में तो -1 कर देगा, दैट मीन्स ये दोनों रोज, इस टाइम ये दोनों रोज देखेगा हमारी। 0:2 मतलब 0, 1 ये वाली वैल्यूज और 0, 1 ये वाली वैल्यूज। क्लियर? तो ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू देगा इस टाइम। तो रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो मैंने क्या कहा था, दोनों कॉलम्स की वैल्यू देगा, 1, 2 दे रहा है, 5 एंड 6 दे रहा है। समझ में आया? क्या रिटर्न करके दे रहा है, यहाँ से 0, 2 मतलब ये वाली रो की बात हो रही है, तो इस वाली रो में इसने क्या रिटर्न करा 0:2, दैट मीन्स 0, 1। और देन फर्स्ट रो पे आएगा जो आपकी नेक्स्ट रो थी, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या है 5 एंड 6। इसको भी एक बार नोटबुक पे समझ लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आई एम जस्ट राइटिंग राइट नाउ b इक्वल्स टू डेटा 0:2 एंड 0:2। फाइन, जस्ट सी हियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था ये क्या होता है, हमारा रो है, क्या है ये रो है, और ये क्या है हमारी कॉलम की वैल्यू है। तो रो क्या है 0:2, 2 में से हमें क्या करना है -1, तो 0 और 1 रो देखेंगे। तो 0 और 1 रो देखेंगे इस बार। ठीक है, कितनी 2 रोज देख रहे हैं, 2 रोज देख रहे हैं। क्लियर? अब कॉलम की बात करें, ये किसके लिए होती है वैल्यू, कॉलम के लिए होती है। तो 0 से लेके 2 कॉलम तक देखने हैं। तो 0 से लेके 2 कॉलम तक देखने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या देखेंगे हम 0, 1 एंड 2। क्लियर? हम कौन से कॉलम देखेंगे 0, 1 एंड 2। बट 2 की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, इसमें -1 करते हैं। तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो 1 आने का मतलब क्या है, हमें कौन कौन सी वैल्यू देखनी है 0 एंड 1। तो हमें रो में भी 0 और 1 देखनी है और कॉलम में भी 0 और 1 देखनी है। रो में 0 और 1 की बात करें तो ये पर्टिकुलर पूरा बॉक्स बन जाएगा ना, क्योंकि 0 और 1 में तो ये 2 वैल्यू हैं। ठीक है, और कॉलम में और 0 और 1 की बात करें तो ये दोनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यही दोनों वैल्यूज आएंगी ना। तो अब ये प्रिंट कैसे कराएगा, ये सबसे पहले किस पे जाएगा, फर्स्ट रो पे, 0 रो पे जाएगा। तो ये मेरी क्या है 0 रो। तो 0 रो के 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 1 प्रिंट करा देगा ये। ठीक है,
फिर ये क्या करेगा, एक और कॉलम देखेगा 0 रो का, 0 के 1 पे वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या प्रिंट करा देगा 2। क्लियर। इसके बाद मेरी ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये सेकेंड रो पे आएगा, क्योंकि 1 तक चलना है ना, इसको 1 तक चलना है, तो फर्स्ट रो के अंदर 0 एलिमेंट पे वैल्यू क्या है 5। क्लियर। और फर्स्ट रो के फर्स्ट पे एलिमेंट क्या है 6। क्लियर। तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, ये वाली वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। क्लियर है। इसी के अंदर अगर और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो आप लेके देख सकते हो। आप यहाँ पे 3 लेके देख लो। क्लियर। और यहाँ पर आप ले सकते हो 0:3। ठीक है, मैंने अब 3 ले लिया यहाँ पे, या यहाँ पे आप 2 ही रहने दो, यहाँ पे आप 3 तक वैल्यूज देख लो। इस केस में अब क्या करेगा, ये 0 और 1 ही लेगा, बट वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 क्या होता है 2। तो कहाँ तक देखेगा 0 1 2, तो कॉलम के अंदर तो ये वैल्यू क्या देखेगा 0 1 2, और रोज में ये क्या देखेगा 0 and 1। तो 0 and 1 रो है, कॉलम कहाँ तक हो गए, अब 3 तक हो गए। तो इस बार हमारी कहाँ तक वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस केस में अब हमारी वैल्यूज क्या हो गई, तो इस केस में अब जो हमारी वैल्यूज हैं स्टूडेंट वो कौन सी हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने पेंसिल यूज़ कर लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाला सेट बनेगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमारी जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, हमारी रोज़ हैं देखो यहाँ पे 0 and 1, 0 and 1, और कॉलम क्या है 0 1 and 2। तो रोज़ हमने देख ली 0 and 1, और कॉलम कितने हैं 0 1 and 2, 3 कॉलम्स है। ठीक है, सेम कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट 0 रो पे देखेगा, 0 रो पे देखेगा। ठीक है, तो 0 पे क्या एलिमेंट है 1, 1 प्रिंट करेगा। 0 के 1 पे क्या एलिमेंट है 2, 2 प्रिंट करेगा। 0 के 2 पे क्या एलिमेंट है 3, 3 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट रो पे आएगा, ऐसे ही 5 प्रिंट करेगा। 1 के 1 पे देखेगा क्या है 6, देन 1 के 2 पे क्या है 7। क्लियर। तो आपको रिटर्न क्या करके रिजल्ट देगा ये 1 2 3 5 6 7। किस केस में, जब आपने यहाँ 0 2 और 0:3 लिखा होगा। क्लियर। इस एग्जाम्पल को भी सिस्टम पे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 0:2 और 0:3। तो इसको सेव कर दिया मैंने और इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे हमारा आउटपुट आ रहा था, क्या आ रहा था 1 2 3 5 6 7। तो ऐसे यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है मेरा 1 2 3 and 5 6 7। फाइन। आई होप दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको सेम ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको बताना होगा इसका आउटपुट क्या आएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करना, और भी सिस्टम पे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो उसको। जैसे मैंने अभी इसी केस में क्या करा, मैंने ये हटा दिया, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, तब भी क्या लेगा ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा सेकंड तक, दैट मीन्स -1। ये दोनों रोज ही लेगा, दैट मीन्स इस केस में भी मेरा आउटपुट अभी क्या आएगा सेम आएगा बिल्कुल। क्लियर। सेम क्यों आएगा, क्योंकि आप 0 लिखो चाहे आप उसको 0 को हटा दो, लेगा तो वो इनिशियल वैल्यू से, जब आपने कॉलम से पहले वैल्यू मेंशन नहीं करी है तो। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा और चेंजेस कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ लिख दिया 1। क्लियर। और यहाँ हमने क्या लिख दिया 3। फाइन। और 0:3 लेके चलते हैं। 1 3 का मतलब क्या हुआ, इस टाइम ये 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स ये वाला कॉलम देखेगा, और 3 - 1 क्या होगा 2, दैट मीन्स इस टाइम पे ये 2 रोज देखेगा। अब कौन कौन सी, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो देखेगा। और 0:3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो के अंदर पहले 3 कॉलम और सेकेंड रो के अंदर भी सेकेंड वाले रोज में भी फर्स्ट के 3 कॉलम्स। दैट मीन्स अगर हम इसका आउटपुट देखें तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो 0 1, दिस रो 0 1 2 3 5 6 7 और 9 10 11। तो रन करके देख लेते हैं कि ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। एज आई टोल्ड यू 5 6 7 9 10 11। क्लियर है। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आने हैं, बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करिए मैंने ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, स्लाइसिंग कंसिस्ट ऑफ 2 रोज। जो आपकी फर्स्ट रो थी उसमें इसने क्या आउटपुट दिया 5 6 7, और जो आपकी सेकेंड रो थी उसमें इसने क्या आउटपुट दिया 9 10 and 11। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, हाउ टू डू एरे स्लाइसिंग। फाइन। सो लेट्स मूव बैक टू आवर स्लाइड्स। फाइन।
So I hope this particular topic is clear to all of you. Students, next array topics, that is joining and concatenation and transpose and arithmetic, we will see in the upcoming videos. So I hope this particular thing is clear to you. So just like this particular video and share with your friends so that they can also learn how to do slicing in the arrays, and they can also see the further video on my channel, and subscribe the channel if you haven't subscribed the channel yet. So students, thanks for watching.